کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک عام مزدور کو اچانک سونے سے بھری تھیلی مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنی قسمت بدل لے گا؟ اس دولت کی چمک اسے اندھیرے میں دھکیل دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے اللہ نے آزمایا، پہلے نعمت دے کر اور پھر دیکھنا چاہا کہ وہ نعمت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اصل امتحان دولت کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ سوداگر نے دھوکہ دیا، وقت نے کوئی نیا راز کھولا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھو، کیونکہ کہانی کا اختتام وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ یہ قصہ ہے بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا جہاں زیادہ تر محنت کش مزدور رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک احمد نامی غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی مسلسل محنت اور مشقت سے بھری پڑی تھی، مگر پھر بھی اس کے پاس اتنا نہ ہوتا کہ وہ پیٹ بھر کر 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ وہ سارا دن بازار میں محنت مزدوری کرتا، کبھی کسی کا بوجھ اٹھاتا تو کبھی کسی کی صفائی کرتا، لیکن جتنی بھی محنت کرتا اس کی اجرت صرف اتنی ہوتی کہ بمشکل اس کا گزارا ہو پاتا۔ مگر احمد کی ایک عادت ایسی تھی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ وہ ہر رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا۔ رات کی تنہائی میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے، احمد آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو بہاتا اور اللہ سے کہتا، اللہ مجھے اتنی روزی عطا کر دے کہ میں چین سے زندگی گزار سکوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لا سکوں۔ وہ ہر رات یہی دعا کرتا اور صبح ہی مزدوری میں جاتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ غربت کا وہی عالم رہا۔ اب احمد کے دل میں ایک عجیب بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کی دعائیں نہیں سنی جا رہیں، اللہ اس کی فریاد نہیں سن رہا۔ آخر کب تک وہ اسی حال میں زندگی گزارتا رہے گا؟ یہ سوالات اس کے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے، لیکن اس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ ایک دن احمد حسب معمول بازار کے اسی کونے میں جا بیٹھا جہاں مزدور کام کے انتظار میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں کچھ کسان اپنے کھیتوں کے لیے مزدور تلاش کر رہے تھے، کچھ تاجر اپنا سامان منڈی تک پہنچانے کے لیے مزدوروں کی خدمات لے رہے تھے۔ ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق مزدور مل رہے تھے، لیکن آج احمد کے نصیب میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے آردگرد دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ کل رات کی دعا اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اے اللہ اگر تاو مجھے دولت نہیں دے سکتا تو کم از کم میری تقدیر ہی بدل دے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی اس کی دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں، شاید اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا۔ اسی دوران اچانک بازار میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا جو احمد کی زندگی کا ایک نیا سبق ثابت ہونے والا تھا۔ بازار میں اچانک ایک دل سوار شخص تیزی سے داخل ہوا۔ اس کا چہرہ فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا، کیا یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایماندار ہو، مضبوط ہو اور جسے فوری طور پر کام درکار ہو؟ یہ سن کر وہاں بیٹھے کئی مزدوروں نے فوراً ہاتھ بلند کر دیے، مگر گل سوار کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھٹکی اور پھر سیدھا احمد کی طرف جا رکیں۔ اس نے غور سے احمد کا جائزہ لیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد نے مؤدبانہ کہا، احمد اگر آپ کو کوئی کام درکار ہے تو میں حاضر ہوں۔ دھل سوار نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے ایک خاص آدمی کی تلاش ہے اور شاید وہ تم ہی ہو۔ اگر تم واقعی ایماندار اور محنتی ہو تو میں تمہیں ایک بڑا کام دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا کام ہے جناب؟ دھل سوار نے نظریں گھما کر بازار میں پھیلی بھیڑ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ عام مزدوری جیسا کام نہیں ہے۔ تمہیں میرے ساتھ ایک طویل سفر پر جانا ہوگا اور ایک اہم آزمائش کا کام کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اس کام میں کامیابی ملی تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی، لیکن اگر ناکام ہوئے تو شاید تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ احمد کا دل بے ترتیب زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ عام مزدوروں کی طرح بازار میں بیٹھ کر کام تلاش کرتا تھا، آج اچانک ایک انجانے سفر پر جانے کی بات ہو رہی تھی۔ احمد کے دل میں سوال اٹھنے لگے، کیا یہ میری دعا کا جواب ہے؟ کیا اللہ نے میری تقدیر بدلنے کے لیے مجھے کسی آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، جناب میں تیار ہوں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا اور کہاں جانا ہوگا۔ دھل سوار نے گہری سانس لے کر کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جہاں تمہاری قسمت انتظار کر رہی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس بات کا یقین تھا کہ یہ موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔
वो दोनों खामोशी से एक गिल्ली में दाखिल हुए। अहमद तेज कदमों से चल रहा था, इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। कुछ देर बाद वो एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर लकड़ी के नफीस नक्श और निगार थे। घल सवार ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा दरवेश नुमूदार हुआ। इसकी सफेद दाढ़ी, पुरनूर चेहरा और सादा लिबास देखकर अहमद हैरान रह गया। घल सवार ने दरवेश की तरफ देखते हुए कहा, "ये है वो आदमी।" दरवेश ने अहमद की तरफ गौर से देखा, जैसे इसके दिल का हाल पल रहा हो। अहमद ने सहमे हुए आलम में एक नज़र घल सवार पर डाली, फिर दरवेश की तरफ देखने लगा। घल सवार ने इस बात में सर हिलाया, "जी हाँ, यही वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी।" अहमद की उलझन बढ़ती जा रही थी। वो उन लोगों को नहीं जानता था, ना ही ये समझ पा रहा था कि वो इससे क्या चाहते हैं। इसने अदब से कहा, "मालिक, अगर आपको मुझसे कोई खिदमत दरकार है तो जल्दी से बताएं। मैं काम मजदूर हूँ, लेकिन ईमानदारी से हर काम करने के लिए तैयार हूँ।" दरवेश ने गहरी सांस ली और नरमी से बोला, "बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है?" अहमद की पेशानी पर बिल पड़ गए। वो परेशानी से बोला, "नहीं हजरत, मैं तो बस काम की तलाश में था और ये साहिब मुझे यहाँ ले आए हैं।" दरवेश मुस्कराए, "बेटा, तुमने अपनी तकदीर बदलने की दुआ की थी। तुमने अल्लाह से फरियाद की थी कि वो तुम्हें दौलत अता करे और कामयाब करे।" अहमद का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का, हैरत से बोला, "जी, मगर आपको कैसे मालूम?" दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और नरमी से कहा, "क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। मगर याद रखो, अल्लाह का तरीका मुख्तलिफ होता है। जो चीज़ तुम्हें बगैर मेहनत के मिल जाए, इसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो चीज़ आजमाइश के बाद मिले, वो हमेशा के लिए तुम्हारी होती है।" अहमद खामोशी से खड़ा ये अल्फाज जज्ब कर रहा था कि दरवेश ने आगे बढ़कर एक भारी थैली इसके हाथ में थमा दी। अहमद ने हैरत से इसे थामा। अहमद का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। थैली का वजन वाज़े कर रहा था कि इसमें सोने के सिक्के मौजूद हैं। अहमद ने हैरत से दरवेश की तरफ देखा। "ये तुम्हारी आजमाइश है," दरवेश ने संजीदगी से कहा। "अगर तुमने इस रकम को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तुम्हें मजीद अता करेगा, लेकिन अगर तुमने इसे ज़ाय किया या गलत रास्ते में खर्च किया तो ये सब कुछ तुमसे वापस ले लिया जाएगा।" अहमद के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली थी, जो इसके लिए किसी ख्वाब से कम ना थी। यही वो दौलत थी जिसके लिए वो रातों को अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगा करता था, मगर अब ये एक आजमाइश के तौर पर इसके हाथ में रखी जा चुकी थी। "क्या मैं वाकई इस दौलत का हकदार हूँ?" अहमद ने दिल में सोचा। वो जो कल तक एक आम मजदूर था, आज इसके पास इतनी दौलत थी कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। दरवेश ने इसकी आंखों में उभरती कशमकश को महसूस कर लिया और नरमी से कहा, "बेटा, अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो इसके साथ आजमाता भी है। ये दौलत तुम्हारे पास एक इम्तिहान के तौर पर आई है, अब ये तुम पर है कि तुम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हो।" अहमद ने सर झुका कर कहा, "हजरत, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस दौलत को फजूल खर्ची में नहीं आ रहा है, बल्कि इसे किसी अच्छे काम में लगाऊंगा।" दरवेश मुस्करा दिया, मगर इसकी आंखों में गहरी हिकमत झलक रही थी, जैसे वो जानता हो कि आजमाइश का असल वक्त अभी आया नहीं है। अहमद इस दौलत को लेकर सीधा बाजार पहुंचा। कल तक जो लोग इसे मजदूरी के इंतजार में बैठा देखते थे, आज हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। वो अब आम मजदूरों की तरह नहीं लग रहा था, इसके अंदाज में एक अजीब सी खुदस्मादी झलक रही थी। वो बाजार के सबसे बड़े कपड़े के ताजिर के पास पहुंचा और इसे कहने लगा, "मुझे बेहतरीन कपड़े चाहिए, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे लिबास पहनना चाहता हूँ।" दुकानदार ने मुस्करा कर पूछा, "अभी कुछ दिन पहले तो तुम एक आम मजदूर थे, आज तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई?" अहमद ने नरमी से जवाब दिया, "ये मेरी किस्मत का फैसला है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है।" दुकानदार ने कीमती कपड़े निकालकर इसके सामने रख दिए और अहमद ने चमकदार रेशमी लिबास खरीद लिए। ये पहला लम्हा था जब दौलत ने इस पर अपना असर दिखाना शुरू किया। कपड़े खरीदने के बाद जब वो बाजार में निकला तो हर कोई हैरानी से इसकी तरफ देख रहा था। वही अहमद जो कल तक एक आम मजदूर था, आज एक मुतमव्विल आदमी लग रहा था। इसी दौरान एक ताजिर इसके पास आया और बोला, "अहमद भाई, लगता है तुम्हारे दिन बदल गए हैं, आओ हमारे साथ बैठो, हमें अपनी कहानी सुनाओ।" वही ताजिर जो पहले इसे अपनी महफिल में जगह नहीं देते थे, आज खुशी खुशी इसका इस्तकबाल कर रहे थे। अहमद को एक शान और शौकत वाली नशिस्त पर बिठाया गया था। इसके आगे कीमती खाने रखे गए और हर कोई इसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आ रहा था।
क्या दौलत वाकई इंसान को इज्जत देती है? अहमद ने दिल में सोचा, क्या ये वही लोग नहीं जो कल तक मुझे नजरअंदाज करते थे? अहमद की आंखों में चमक थी। यही तो वो चाहता था, एक कामयाब जिंदगी, इज्जत और दौलत। वो जो कल तक बाजार में मजदूरी के इंतजार में बैठा रहता था, आज इसके पास वो सब कुछ था जिसका वो ख्वाब देखा करता था। एक गरीब मजदूर से अचानक एक मालदार शख्स बन जाना इसके लिए हैरानकुन था। इसे लगा ये मौका अल्लाह की तरफ से दिया गया है और इसे इसका सही इस्तेमाल करना होगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि दौलत का असल इम्तिहान कैसे होता है। इसी दौरान बाजार का एक चालाक सौदागर अहमद के करीब आया और बोला, अहमद भाई, अगर तुम वाकई दौलतमंद बनना चाहते हो तो ये दौलत यूज़ारे ना करो। मैं कहता हूँ, दौलत अगर सही तरीके से ना बढ़ाई जाए तो वो ख़त्म हो जाती है, मगर जो शख्स इसे अक्ल से इस्तेमाल करता है वो हमेशा अमीर रहता है। फिर वो राजदाराना लहजे में बोला, मैं तुम्हें ऐसा कारोबार करवा सकता हूँ जिससे तुम्हारी दौलत बहुत वसी हो जाएगी। अहमद, जो हमेशा अपनी किस्मत के बदलने का ख्वाब देखता था, सौदागर की बातों में आ गया। इसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो कोई कारोबार का तजर्बा नहीं। सौदागर कहकहा लगा कर बोला, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपनी दौलत मेरे हवाले कर दो। मैं इसे बेहतरीन कारोबार में लगा दूंगा और चंद ही दिनों में तुम्हारी दौलत दागिनी हो जाएगी। अहमद को ये बात बहुत माकूल लगी। आखिरकार वो भी एक आम मजदूर से कामयाब ताजिर बनने के ख्वाब देख रहा था। इसने दरवेश की नसीहत को भी याद रखा कि अगर वो दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह इसे और नवाजेगा। मगर वो ये भूल चुका था कि दौलत के साथ आजमाइश भी होती है। बगैर ज्यादा सोचे अहमद ने अपनी आधी दौलत सौदागर के हवाले कर दी और इससे कहा, ये तुम्हारे पास अमानत है, मुझे उम्मीद है कि मैं इससे बहुत कुछ हासिल करूंगा। सौदागर मुस्करा कर सोने से भरी थैली ले गया और बोला, फिक्र मत करो, चंद दिनों में तुम्हें ऐसा मुनाफा मिलेगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अहमद मुतमईन था। इसे लगा जैसे इसने किस्मत का सबसे बेहतरीन फैसला कर लिया हो। फिर कुछ दिन गुजर गए। अहमद रोज बाजार जाता और सौदागर का इंतजार करता कि वो आकर इसे मुनाफा देगा, लेकिन सौदागर इसे कहीं नजर नहीं आता था। जब अहमद इस सौदागर की दुकान पर गया तो इसे हर बार यही जवाब मिला, सौदागर आज मौजूद नहीं है, कल आना। ये सुनते सुनते अहमद को परेशानी होने लगी, मगर वो खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद कारोबार में थोड़ा वक्त लगता है और जल्द ही इसे मुनाफा मिलेगा। फिर एक दिन जब वो दोबारा सौदागर की तलाश में निकला तो पता चला कि वो शख्स तो बाजार से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। ना इसकी कोई दुकान बाकी थी, ना सामान, और ना ही कोई सुराग कि वो कहाँ चला गया। ये खबर सुनते ही अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसकी आधी दौलत एक धोखाबाज के हाथों लाग चुकी थी। अचानक इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे दरवेश की वो बात याद आई, अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो आजमाता भी है। अगर दौलत का सही इस्तेमाल ना हो तो वो वापस ले ली जाती है। ये सोचकर अहमद के अंदर घबराहट फैल गई। क्या मैं वाकई आजमाइश में नाकाम हो गया? क्या मैंने अपनी दौलत एक गलत शख्स के हवाले कर दी? इसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं वैसा ही एक आम मजदूर रहता तो कम अज कम इज्जत की रोटी तो खा रहा होता। अब मैं खुद को बेवकूफ समझने लगा हूँ। अहमद ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, मगर अब इसके पास सिर्फ आधी दौलत बाकी थी और वो नहीं चाहता था कि बाकी भी ज़ाय हो जाए। वो सीधा दरवेश के पास पहुंचा, जो बदस्तूर उसी पुरानी हवेली में मौजूद था। नदामत भरे लहजे में अहमद ने कहा, हजरत, मैंने अपनी दौलत का एक हिस्सा एक गलत आदमी को दे दिया। वो सब कुछ लेकर भाग गया है। मैं आपकी नसीहत समझने में देर कर बैठा। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? दरवेश ने नरमी से मुस्करा कर कहा, बेटा, अगर तुम्हें ये एहसास हो चुका है कि गलती कहाँ हुई तो समझो कि आजमाइश का पहला दरवाजा तुमने पार कर लिया है। मगर याद रखो, असल आजमाइश तो अभी बाकी है। अगर बाकी दौलत भी बगैर सोचे समझे खर्च की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसे किसी ने काम में लगाया तो यही दौलत हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अहमद हैरत से बोला, लेकिन हजरत, मैं इसे नेकी में कैसे लगाऊं? मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतनी दौलत कहाँ कि कोई बड़ा काम कर सको। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अल्लाह दौलत से ज्यादा नीयत को देखता है। अगर तुम वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अपनी दौलत किसी ऐसे काम में खर्च करो
जो ना सिर्फ तुम्हारे लिए फायदा मंद हो बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करे। ये सुनकर अहमद गहरी सोच में डूब गया। मेरे पास जो बच्ची खिंची दौलत है, मैं इसे कहाँ और कैसे खर्च करूं? मगर हर बार दरवेश की बातें इसके जहन में गूंजने लगती। अगर तुमने इसे किसी नेक काम में लगाया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अगली सुबह जब वो बाजार पहुंचा तो इसके देखने का अंदाज बदल चुका था। पहले वो लोगों को हसरत भरी नजरों से देखता था, मगर आज वो उनकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। इसने उन मजदूरों को देखा जो कल तक इसके साथ काम करते थे। वो आज भी वैसे ही थे, गरीब, थके हारे, आदास। फिर इसकी नजर उन फकीरों, यतीम बच्चों और बेवाओं पर पड़ी जो बाजार के किनारे बैठे रोटी के एक नवाले के लिए सवाल कर रहे थे। अहमद के दिल में एक अजीब सी कसक अलिफाटे। अगर मेरे पास दौलत है तो क्या मैं इसे सिर्फ अपने आराम के लिए इस्तेमाल करूं? ऐसे काम में लगाऊं जो दूसरों के भी काम आ सके। ये सोचते हुए इसकी नजर एक नान बाई की दुकान पर जा ठहरी। वहां कुछ लोग खड़े थे, भूख से निढाल, मायूस, आदास चेहरे। कुछ तो वापस पलट रहे थे क्योंकि उनके पास रोटी खरीदने के भी पैसे ना थे। ये मंजर देखकर अहमद का दिल लरस गया। वो नान बाई के पास गया और पूछा, ये जो लोग आते हैं, अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो क्या करते हैं? नान बाई ने अफसोस से कहा, जो पैसे नहीं दे सकते वो भूखे वापस चले जाते हैं। अहमद ने कहा, आज से अगर कोई बगैर पैसे के आए तो इसे भूखा वापस ना जाने देना। रोज जितनी रोटियां ऐसे लोगों को दोगे, इसका हिसाब रखना। मैं रोज आकर वो हिसाब चुका दूंगा। नान बाई हैरत से बोला, मगर तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अहमद मुस्करा कर बोला, ये सौदा मुनाफा के लिए नहीं, नेकी के लिए है। जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और इसे उसी के बुंदों पर खर्च होना चाहिए। ये फैसला इसकी जिंदगी में एक नई राह का आगाज था। अहमद ने ना सिर्फ भूखे लोगों के खाने का बंदोबस्त किया बल्कि गरीबों की मदद की, यतीम बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और हर इस शख्स की मदद की जिसे जरूरत थी। फिर एक दिन जब वो हसब मामूल नान बाई की दुकान पर गया तो वहां एक अजनबी इसका इंतजार कर रहा था। वो कीमती लिबास में था मगर आंखों में शर्मिंदगी थी। वो आगे बढ़ा और नरमी से बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अहमद ने नफी में सर हिलाया तो वो बोला, मैं वही सौदागर हूँ जिसने तुमसे दौलत ली थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया और चला गया, मगर जब सुना कि तुमने बाकी दौलत नेकी में लगा दी तो यही बात मुझे वापस ले आई। ये लो तुम्हारी रकम, और इस पर जो मुनाफा हुआ वो भी शामिल है। मैंने तुमसे बेवफाई की मगर तुमने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। अब मैं भी गवाही देता हूं कि नेकी ही असल सौदा है। अहमद ने खामोशी से सुना और नरमी से कहा, मुझे दौलत नहीं, अल्लाह की रजा चाहिए थी और वो मैं हासिल कर चुका हूं। तुमने जो सीखा बस वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये वो लम्हा था जिसने अहमद को हकीकत से आशना कर दिया था। जब वो सिर्फ दौलत का तलबगार था तो इसे दौलत मिली मगर इसकी कोई कदर ना थी। लेकिन जब इसे इसका सही इस्तेमाल मालूम हुआ तो अल्लाह ने इसे ना सिर्फ इसकी खोई हुई दौलत वापस की बल्कि इज्जत भी अता की। कल तक जो अहमद एक आम मजदूर था, आज सब इसे रहमत का सौदागर कहने लगे। जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, आज वो दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन चुका था, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि हकीकी दौलत दिरहम और दीनार नहीं बल्कि नेकी है, और जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है अल्लाह इसे बेहिसाब लूटा देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल दौलत माल और दौलत में नहीं बल्कि नीयत, इखलास और नेकी के जज्बे में है। जब इंसान अपनी खुशहाली को दूसरों की फलाह के लिए इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ना सिर्फ इसके नुकसान की तलाफी करता है बल्कि इस पर अपनी रहमतों के दरवाजे भी खोल देता है। ये दुनिया आजमाइश है और दौलत इस आजमाइश का एक जरिया। जो इस नेमत का शुक्र अदा करता है और इसे अल्लाह के बुंदों की खिदमत में लगाता है, वही असल कामयाब है। नेकी कभी जाया नहीं जाती बल्कि वो लूट कर आती है, 10 गन्ना 100 गन्ना और कभी बेहिसाब। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और आपको किस तरह की कहानियां पसंद है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय कभी इजहार करना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको कहानी पसंद अलिफी तो इसको अपने दोस्तों और प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी
اس دلچسپ کہانی سے لطف اندوز ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔